morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. Today, I'm going to start a new chapter named Who Did Patrick's Homework? This story is about a boy who never liked doing his homework. He never liked it at all. So, let's get started. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. Then, one day, he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish. I promise you that. So, let's understand this. Patrick never did his homework. He never liked it at all. So, जो पैट्रिक था उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था. कभी भी वो होमवर्क करना ही नहीं चाहता था. वो हमेशा बोलता था टू बोरिंग, बहुत बोरिंग काम है होमवर्क करना. ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो इंस्टीड. इससे अच्छा वो खेलता था हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो. व्हाट इज निंटेंडो? इट्स अ वीडियो गेम. वो हमेशा खेलता रहता था पर वो होमवर्क नहीं करता था. His teachers told him, Patrick, do your homework, you won't learn nothing. उसके टीचर्स उससे हमेशा ये बोलते रहते थे कि अपना होमवर्क करो वरना तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं सीख पाओगे और तुम्हें कुछ नहीं आएगा. और ये सच भी था. Sometimes he did feel like an ignoramus. उसे कभी कभी फील होता था एक इग्नोरमस पर्सन की तरह. इग्नोरमस मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसे who have lack of education, जिसको कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो एजुकेटेड नहीं होता. बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. पर वो क्या कर सकता था? उसे होमवर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल. One day, what he saw that his cat was playing with a little doll. So he grabbed it away. उसने देखा कि उसकी बिल्ली किसी एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है. तो उसने क्या किया? उस डॉल को छीन लिया और भाग गया. To his surprise, it wasn't a doll at all. और surprisingly, what he found that it's not a doll. वो डॉल नहीं थी, बल्कि एक मैन था, एक आदमी था, बहुत छोटे से साइज में. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches. जिसने एक वूल शर्ट पहनी हुई थी एक ओल्ड फैशन ब्रिचेस के साथ. व्हाट इज ब्रिचेस? ब्रिचेस क्या होते हैं? शॉर्ट ट्राउजर होते हैं जो एक इंसान पहनता है. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. और एक बहुत ही हाई टॉल हैट पहनी थी जिसे विचेस पहनते. जैसे स्टोरीज में जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं जिसमें चुड़ैल होती है या फिर कोई एक जादूगरनी टाइप कैरेक्टर होता है, जैसी हैट पहनता है वैसे उसने पहनी हुई थी. ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. फिर वो उसने येल किया. ही सेड, प्लीज मुझे उस कैट को वापस मत दो, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. और उसने बोला, मैं तुम्हें एक विश तुम्हारी पूरी करूँगा, मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ. सो Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester. That's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो अब तो पैट्रिक को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी. ही वॉज फीलिंग द luckiest person in this world because
all the problem started with his homework. Now he found a way. So he asked that little tiniest man कि I will not give you back to the cat if you will do all my homework till the end of the semester. अगर तुम मेरे सेमेस्टर के एंड तक मेरा सारा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा. That is for 35 days. और अगर तुम अच्छे से ये काम करोगे तो मुझे A's भी मिल सकते हैं. So you can see how clever Patrick was. He said, do my homework, और वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर तुम मेरा काम अच्छे से करोगे तो मुझे तो क्लास में A भी मिल सकता है. The little man was feeling that he was in trouble. He was so irritated, but what could he do? Now he wanted to get rid of that cat. He don't wanted to get back to that cat. So he said, okay, I'm cursed, I'm in trouble. But I don't have another choice. I will do it. He was so irritated with this, but he agreed to do this. तो उसने कहा ठीक है मैं करूँगा. Here are some words जिसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए. First is discloth. Discloth यूज हुआ है यहाँ पे कि the little man's face wrinkled like a discloth thrown in the hamper. Discloth means a cloth used for washing dishes. बर्तन धोने के लिए जो कपड़ा यूज होता है उसको डिस्क्लोथ बोलते हैं. हैम्पर, अ बास्केट विथ लिड. लिड से भरा हुआ बास्केट जो होता है उसे हैम्पर बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज ग्रिमेज्ड. ग्रिमेज्ड और स्कॉल्ड. पर्स्ड लिप्स. ग्रिमेज कॉल्ड पर्स्ड लिप्स का मतलब क्या होता है? हिज फेस एंड हिज एक्सप्रेशंस, जो जिससे हमें पता लगता है कि सामने वाला इंसान इज नॉट रेडी फॉर समथिंग. डिसअप्रूवल सामने से झलकता है, बट क्या हुआ एंड में? उसके एक्सप्रेशंस तो ऐसे थे पर उसको हाँ बोलनी पड़ी दैट टाइनीएस्ट साइज मैन को, बिकॉज उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि उसे उस कैट से बचना था. मैं आपको ये वर्ड्स की मीनिंग अलग से लिख के दूंगी ताकि आपको याद रहे. So, moving forward, and true to his word, that little elf began to Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. अब क्या होता है कि now elf यानी that little man started doing his homework, यानी Patrick's homework, true to his word because he promised. So he started doing Patrick's homework. Except there was one glitch. पर वहाँ पे एक glitch था. Glitch means a fault in a machine that prevents it from working properly. Like there was one problem. You can say that there was one problem. The elf did not always know what to do and he needed help. Elf को नहीं पता होता था कि करना क्या है, तो उसे हमेशा पैट्रिक की हेल्प चाहिए होती थी. तो वो कहता था हेल्प मी, और पैट्रिक को हेल्प करनी ही पड़ती थी किसी भी तरह. आई डोंट नो दिस वर्ड, क्योंकि यार आपको पता है ना, एल्फ जो होते हैं वो उन्होंने तो कभी पढ़ाई करी नहीं होती है, तो उन्हें कैसे पता होगा कि क्या कौन सा वर्ड है या होमवर्क कैसे करते हैं. तो उसको हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी पैट्रिक की. अब उसने हाँ तो बोल दिया था. he said yes because he wanted to get rid of that cat. So now the trouble began. वो बार बार पैट्रिक को बुलाता था एंड बोलता था हेल्प मी. अब पैट्रिक को तो हेल्प करनी ही थी. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. होमवर्क पढ़ते हुए एल्फ ने बोला मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता. तो फिर क्या हुआ? अब
तो उसे बताना ही पड़ा पैट्रिक को कि मतलब क्या है और एल्फ ने बोला गेट मी अ डिक्शनरी. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. एल्फ ने बोला जाओ डिक्शनरी लेके आओ, या तो फिर डिक्शनरी लाओ और एक एक वर्ड को अलग अलग एक एक लेटर के साथ पढ़ो और मुझे बताओ. और यहाँ से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. So children, I think it's enough for today. I will move forward tomorrow. Till then, take care and have a good day.